PTV نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں ریفرنڈم کروانے کا وزیر اعظم عمران خان کا بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی آزاد کشمیر میں ریفرنڈم کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخی اور آئینی موقف سے انحراف کر رہے ہیں۔ پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن میں حکومت نے قومی ضلعی انسداد پولیو مہم آئندہ ماہ چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی ضلعی انسداد پولیو مہم 3 دن تک جاری رہے گی اور 2 کیچ اپ ڈیز ہوں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے پولنگ عملہ اپنی جائے تعیناتی کے لیے روانہ ہونا شروع ہو گیا۔ پولنگ کے سامان کی تقسیم بھی شروع۔ آزاد کشمیر کے مجموعی طور پر 45 حلقوں بشمول مہاجرین مقیم پاکستان کے لیے 33,616 ملازمین پر مشتمل پولنگ عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں 27,131 ملازمین خدمات سر انجام دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف جیسے لوگ بین الاقوامی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا اس لیے خطرناک تھا کہ ایسے لوگ بین الاقوامی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ نواز شریف کی افغانستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی راک کے سب سے بڑے حلیف حمداللہ محب سے ملاقات ایسی ہی کارروائی کی مثال ہے۔ مودی محب یامر اللہ صالح ہر پاکستان دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف حصوں میں کورونا کی تشویشناک صورتحال، پیر سے شادی ہال، دیگر تقریبات پر پابندی عائد۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مزارات بھی بند کرنے کا فیصلہ۔ تعلیمی ادارے بند، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ویکسینیشن نہ کرانے والوں کے سمز بلاک کرنے کے لیے PTA کو بھی خط لکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ تاجروں نے سندھ میں کاروباری اوقات شام 6 بجے کرنے اور ہفتے کو بھی بازار بند رکھنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ہنگامی اجلاس طلب، شادی ہالز مالکان اور ریسٹورنٹ مالکان نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 32 افراد انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 37,636 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,841 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 4.89% رہی۔ NCOC کی ہدایت پر عید کی چھٹیوں کے بعد ویکسینیشن کا عمل دوبارہ شروع۔ سرکاری دفاتر بھی کھل گئے، حاضری معمول سے کم۔ اسلام آباد میں سابق پاکستانی سفارتکار کی بیٹی کے قتل کیس کی تحقیقات، ملزم ڈاکٹر ذاکر کے بیرون ملک کرمنل ریکارڈ حاصل کرنے کا فیصلہ۔ IG اسلام آباد نے تمام شواہد کا فرانزک کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ ڈاکٹر ذاکر کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش۔ برطانیہ کا غریب ممالک کا پیسہ چوری کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ معاون خصوصی شہباز گل برطانوی حکومت کے فیصلے پر خوش۔ ٹویٹ میں کہا نواز شریف جیسے عناصر ملک کی پیسہ چوری کر کے بیرون ملک لے کر جاتے ہیں۔ کرپٹ عناصر پاکستان سمیت دیگر ممالک میں غربت کی اصل وجہ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی جاری۔ سوپورہ میں قابض فوج نے جعلی مقابلے میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ علاقے میں آپریشن جاری۔ گھر گھر تلاشی کے دوران خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ افغان کی صورتحال بدستور کشیدہ۔ افغان فورسز اور طالبان کی شدید لڑائی جاری۔ امریکہ پھر سے بیچ پہ کھود پڑا۔ رات گئے طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کر دیے۔ کراچی میں CBU کے قریب پھنسا بحری جہاز، 3 دن بعد بھی نہ نکالا جا سکا۔ ہینگ ٹینگ 77 نامی بحری جہاز CBU حدود میں پھنس گیا تھا۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے 25 جولائی تک سندھ بھر میں مونسون بارشوں کا امکان۔ تھرپارکر، عمرکوٹ، میر پور خاص، سانگھڑ میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں اتوار اور پیر کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بارشوں سے تباہ کاریوں کے بعد پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ شاہراہ قراقرم کو بحال کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں بارش کے دوران شاہراہ مٹی کے تودوں سے بلاک ہوئی تھی۔ شاہینوں کے جزیروں کے دیس ویسٹ انڈیز میں ڈیرے۔ بارباڈوس میں موجود قومی کرکٹ اسکواڈ کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ 5 میچز کی T20 سیریز کا آغاز 27 جولائی سے ہوگا۔ اور کھیلوں کے سب سے بڑے میلے اولمپکس کا جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ٹوکیو اولمپکس کا کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہوتے ہی اسٹیڈیم رنگ و نور میں ڈوب گیا۔ تقریب کے باضابطہ آغاز سے قبل کورونا وبا کا شکار ہونے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ایونٹ میں پاکستان کے 10 کھلاڑی شامل۔ قومی کرکٹرز کی جانب سے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ ملک میں بھارتی کورونا قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ کے پیش نظر سندھ حکومت نے دوبارہ پابندیوں کا فیصلہ کر لیا ہے۔
पीर से तालीमी इदारे बंद होंगे, दीगर कारोबारी उमूर से मुतालिक भी कवायद व ज़वाबित तब्दील किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि पीर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। ताहम सूबे भर में इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पीर से शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स शाम 6 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। सूबे में किराना, बेकरी और फार्मेसी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दरगाहें भी बंद करने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट्स पर इंडोर और आउटडोर बंद होगा, ताहम टेक अवे की इजाज़त होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए इंतखाबात कल 25 जुलाई को होंगे, जिसमें 26 जमातों के 724 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल होगा, जिसमें 26 जमातों के 724 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। 33 सीटों के लिए पोलिंग आज़ाद कश्मीर में होगी, जबकि पनागुज़ीनों की 12 नशिस्तों के लिए पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान में वोटिंग होगी। इंतखाबात में 8 सीटें ख़वातीन, टेक्नोक्रेट, उलमा और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों के लिए मुख्तस की गई हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मरियम नवाज कश्मीर में गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि चाहे एक सीट से जीतें, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। रावलपिंडी में कश्मीर मुहाजिरीन के जलसे से खिताब में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान किसी दबाव के बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। दासू और भाषा डैम पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1841 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 37,636 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,841 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 32 अफराद की जिंदगियां निगल ली, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रिकॉर्ड की गई। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बरतानिया में कोरोना से मजीद 64 अफराद इंतकाल कर गए। 36,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में 83% कोरोना केसेस में वायरस की भारतीय किस्म होने का इंकशाफ हुआ है। अस्पतालों में 97% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। बरतानिया की ताज़ा तरीन पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 1 लाख नौजवानों में कोरोना के 1,155 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद माहिरीन सेहत ने नौजवानों को जल्द वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाने पर जोर दिया है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में कोरोना से हलाक 99% अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर इस न्यूज ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पाकिस्तान की हकीकी मौसर शरह मुबादला माह जून के दौरान इंडेक्स में बेहतरी हासिल करते हुए 99.85 पॉइंट्स पर पहुंच गई, जिसकी बदौलत अब मुल्क को बरामदात में फायदा, जबकि दरामदात में मजीद महंगी पड़ेंगी। पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेड ऑफ रिसर्च समीउल्लाह तारिक ने बताया कि मौसर ज़र मुबादला में बेहतरी के नतीजे में अब बरामदात को मजीद फ़रोग हासिल होगा, जबकि गैर ज़रूरी दरामदात में कमी आएगी। उनका मजीद कहना था कि इस सूरत हाल से मुल्क के रवा जारी खाता कम होगा, जो जून में मार्केट की तवक्को के बरखिलाफ 1 अरब 60 लाख डॉलर रहा है। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून के अख्ताम पाकिस्तान की हकीकी शरह मुबादला इंडेक्स पर 100 से नीचे आ गई थी, जबकि इससे कबल के 3 माह के दौरान यानी मार्च, अप्रैल और मई में ये शरह 100 से ऊपर रही थी। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़यात BTV इंफोटेनमेंट में। भारत में एक बकरी ने अजीबुल खुल्कत 8 टांगों वाले बच्चे को जन्म दिया। बकरी के बच्चे की पैदाइश की खबर दूर दराज इलाकों तक फैल गई। मकामी लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम घर के आसपास जमा हो गया बकरे के बच्चे को देखने के लिए। देखिए इस रिपोर्ट में। अजीबुल खुल्कत बकरे के बच्चे की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन बदकिस्मती से 8 टांगों वाला ये बच्चा अपनी पैदाइश के चंद मिनटों बाद ही मर गया। सरसूती मंडोल नामी खातून के मुताबिक इनकी बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक बकरी के बच्चे की 8 टांगे थीं, जबकि दूसरा बच्चा नॉर्मल था। बकरी के बच्चे की पैदाइश के चंद मिनटों के बाद ही वो मर गया, लेकिन बकरी और इसका दूसरा बच्चा ठीक है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV इंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की मकबूल तरीन गुलकारा आयमा बेग और अदाकार शहबाज ने मंगनी कर ली, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।
आयमा बेग और शहबाज शिकरी की मंगनी की तकरीब में शोबिस सितारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इस नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आयमा बेग ने अपनी जिंदगी के खास मौके पर साड़ी का इंतखाब किया, जबकि अदाकार शहबाज शिकरी ने स्याह पैंट कोट पहना। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। अमेरिकी और बांग्लादेशी साइंसदानों ने मुश्तरका तहकीक के बाद खबरदार किया है कि अब बांग्लादेश में 5 साल से कम उम्र बच्चों में ऐसे सख्त जान बैक्टीरिया सामने आए हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। अगर इन जरासीम को रोका ना गया तो सारी दुनिया में फैल सकते हैं। ये तहकीक बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका के मुख्तलिफ अस्पतालों में नमूनिया के बायस दाखिल किए जाने वाले हजारों बच्चों पर की गई। इनमें से 108 बच्चे खतरनाक जरासीमों की 5 इकसाम से मुतासिर पाए गए। इन इकसाम के खिलाफ किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक दवा असर नहीं कर रही थी। इनमें से 31 बच्चे दौरान तहकीक ही मौत के मुंह में चले गए। माहिरीन ने खबरदार किया है कि यह मसला बांग्लादेश के किसी एक शहर या चंद अस्पतालों का नहीं बल्कि एक संगीन आलमी मसला है जिस पर काबू पाने की फौरी और अशद जरूरत है। इस तहकीक में नकासी की खराब सूरत हाल, आलूदा पानी और नुस्खे के बगैर आम फरोख्त होने वाली एंटीबायोटिक्स को इस मसले का अहम तरीन जिम्मेदार करार दिया गया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। शोएब अख्तर ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की पेशगोई कर दी है। एक इंटरव्यू में साबिक पेसर ने कहा कि UAE कंडीशंस दोनों टीमों के लिए साजगार हैं। ऐसा महसूस होता है कि वर्ल्ड कप फाइनल में रिवायती हरीफों की टीमें आमने सामने होंगी जिसमें भारत को शिकस्त होगी। याद रहे कि ICC T20 और वनडे वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान टीम को तमाम 11 मुकाबलों में ब्लू शर्ट्स ने मात दी है। इसके बावजूद शोएब अख्तर पुरुम्मीद हैं कि इस बार कहानी मुख्तलिफ होगी। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का मजीद कहना है कि शहर में जुनूब मगरिब की सिमत से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 70% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बादल टेलीविजन नेटवर्क।